আমরা দুই দলের খেলোয়াড় তালিকার দিকে। थैंक यू। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया। दोनों टीम बंगाल की फेवरेट टीम मानी जाती है। और एक तरफ अगर देखें शेरे बंगाल सोमा 11 सोनामुखी क्रिकेट एकेडमी, संगम तिवारी झारखंड से, दीप पॉल पश्चिम बंगाल से, सुमित ढेगले महाराष्ट्र से, सकीर काकू गुजरात से, नदीम धनोरी राजस्थान से, एजाज मंडरेला राजस्थान से, गौरव शर्मा उत्तराखंड, शशि दिल्ली से, दीपक यादव उर्फ बापी पश्चिम बंगाल से, सुमन गोप पश्चिम बंगाल से, आशीष महरुल महाराष्ट्र से, और अगर 12वें खिलाड़ी के रूप में देखें तो सौरभ हल्दर पश्चिम बंगाल से। অন্যদিকে অঞ্চল কলকাতা ভিকি সিং, গোপাল সিং, প্রশান্ত কারাট ফ্রম মুম্বাই, শিবম মোরে ফ্রম মুম্বাই, পুটু সাহা আমাদের বাংলার গর্ব, বাংলার ছেলে, রবিরাজ আহিরেন ফ্রম নাসিক, খোকন হালদার আরও এক বাংলার দুর্দান্ত মানের ক্রিকেটার, কৃষ্ণমূর্তি যাদব ফ্রম ইউপি, দিবাকর গায়েন। বোলিং ডিপার্টমেন্টে এ বাংলার বুকে যে সমস্ত বোলারদের কথা একদম শুরুতে বলতে হয় তাদের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট দিবাকর গায়েন, অঙ্কিত কলকি দ্য মেন ফ্রম ইউপি, Varun, the man from Punjab, and obviously Lucky Singh. একই সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ম্যাচ থেকে কিন্তু জায়ান্ট স্ক্রিনে টাইমার সেট হয়ে গেছে। তো প্রথম বল পড়বে এবং টাইমারও স্টার্ট হয়ে যাবে। 6 ওভারের খেলা, 30 মিনিট করে হবে প্রত্যেকটা ইনিংস। যদিও রিভিউ বা এক্সট্রা টাইম যেটুকু মাঠের বাইরে বল যাবে সেটুকুর জন্য সময় অবশ্যই ম্যাচ অফিসিয়ালসরা ক্যালকুলেট করবেন এবং কি পেনাল্টি হতে পারে না হতে পারে টস পর্বের সময় হেমন্ত বনিয়ালজি এবং ম্যাচ অফিসিয়ালস তারা কিন্তু ডিক্লেয়ার করেছিলেন। আর वेट 12th में दोनों टीम से रिक्वेस्ट है, 12th मैन खासतौर पे शेरे बंगाल सोमा 11 एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी प्लीज आ जाए कमेंट्री बॉक्स पे। पहली बॉल स्ट्राइक पे नदीम धनोरी, ग्लांस करने की कोशिश थी, कोई रन नहीं। पहली बॉल से अंकित सिंह कल किया है बॉलिंग करने पहला ओवर। ওদিকে স্ট্রাইকে কিন্তু রয়েছে নদীম ধনুরি, রাজস্থান থেকে বিলং করে এই খেলোয়াড়। গত বছর বাংলার বুকে দাপটটা দেখেছিলাম আমরা। ये देखिए काफी करीब से बॉल निकली है, अपील काफी जोरदार, लेकिन कोई असर नहीं अंपायर के ऊपर, कोई रन नहीं इस बॉल से। 2 लगातार बिंदी बॉल अंकित सिंह कल की। নদীম ধনুরি একটা ফর্ম নিয়ে আমরা রিসেন্টলি দেখতে পাচ্ছি বেশ কয়েকটা পিছনে টুর্নামেন্টে একটু সংঘর্ষ করছে, তবে আশা করব আমরা এই টুর্নামেন্টে বোধহয় নিজের সেরাটা মেলে ধরতে পারবে। अगली बॉल फिर से एक बार स्लोवर, बिल्कुल समझ नहीं पाए। 3 लगातार अच्छी गेंद इस बॉल पे भागे नदीम, सिंगल मिलेगा लेग बाय के रूप में। অন্যদিকে ঘোষণার सुमित ढेकले और नदीम धनोरी दो सलामी बैटर। अगली बॉल स्ट्राइक पे तैयार सुमित ढेकले, 3 बॉल अब तक हुए इस ओवर में, अंकित 1 रन दिए। फिर से एक बार सामने खेलने का प्रयास था, बैट पर लगकर बॉल पैर पे लगी। 4 अच्छी बॉल सुमंदुदा और अभी तक मात्र 1 रन। প্রথম ওভারে খেলা চলছে, রান সংখ্যা এখনো পর্যন্ত 1। शॉर्ट ऑफ लेंथ, फिर से एक बार इस बार गति में परिवर्तन। पिछला 3 बॉल अगर देखें तो स्लो डाल रहे थे अंकित, इस बार थोड़ा तेजी के साथ उछाल साथ में, कोई रन नहीं। বড় মাঠ এবং সেটা আমরা প্রথম দিন থেকেই দেখেছি, রান করা রান চেজ করা দুটো ক্ষেত্রে কিন্তু কঠিন সিদ্ধান্ত হয়েছে। টসে জিতে এক্ষেত্রে আমরা আফাফুল একটু বিপরীত ছবি দেখতে পাচ্ছি। টস জিতলেই কিন্তু এখানে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত হচ্ছে। तो शायद ये भी है कि यहाँ पे पहले आप बोर्ड पे रन लगाए, एक दबाव डालने की कोशिश करें शुरू से। तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के बाद 2 रन बिना कोई विकेट खोए। প্রথম ওভার থেকে 2 রান, কোনো উইকেটের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।
ম্যাচ সবেমাত্র শুরু হয়েছে, দিন সবেমাত্র শুরু হয়েছে, একটাই মাত্র ম্যাচ হয়েছে। মুখার্জি 11 9 রানে জয়লাভ করেছে। তো জেভিয়ার ব্রাদার্স তাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে, সুযোগ রয়েছে। একদমই হাল্লা বোল যে স্লোগান রয়েছে, থিম সঙ্গে যা বারবার ব্যবহার করা হয়েছে। তো দেখতে পাচ্ছি দর্শকেরা যেভাবে দিনের শুরু থেকেই মাঠের চারপাশে ভিড় জমাচ্ছেন। হাল্লা বোল 16 তারিখ পর্যন্ত আমরা বলতেই পারি। আর আপনাদের প্রত্যেককে জানিয়ে রাখবো, অনেকেই কনফিউজড হচ্ছেন দূর থেকে যারা খেলা দেখছেন, লাইভে জুড়ে রয়েছেন এই মুহূর্তে 70 স্পোর্টসের সাথে। আপনারা অনেকেই ভাবছেন বোধহয় প্রবেশ মূল্য লাগছে, টিকিট রয়েছে। তো আপনাদের প্রত্যেককে জানাবো কোনো টিকিট নেই এখানে। গ্রিন গ্যালারি সবার জন্য বিনামূল্যেই উন্মুক্ত রয়েছে। মাঠে আসুন, খেলা দেখুন। আপনাদের প্রত্যেকের প্রতি আমাদের এটাই আহ্বান থাকবে। तो कृष्णामूर्ति यादव आए बॉलिंग करने के लिए, गेंदबाजी की तरफ बढ़ रहे थे इससे पहले वरुण, लेकिन वहां पे उनको रोका और कृष्णामूर्ति यादव को बुलाया बॉलिंग करने के लिए। उत्तर प्रदेश का ये खिलाड़ी पिछला कई साल सिर्फ बंगाल में नहीं, अलग अलग राज्यों में इन्होंने अपना नाम बनाया है। और सामने होंगे स्ट्राइक पे तैयार सुमित ढेकले। সুমিত ঠেকলে অনেক বড় নাম, আর আজকে এই মাঠে কিভাবে ব্যাটিং করে দেখার হবে। ये देखिए कुछ अलग ट्राई कर रहे थे, थोड़ा दूर रखने का प्रयास, कोई रन नहीं पहली बॉल से। 6 ओवर का मैच, दर्शक चाहेंगे कि अच्छे मैच उनको देखने को मिले। आप देख रहे हैं इस वक्त लाइव 70 स्पोर्ट्स दुर्गापुर धमाका बिग बैश। তো ধামাকা হবে সেই স্লোগানকে সামনে রেখেই কিন্তু এগিয়ে চলেছে ধামাকা বিগ ব্যাশ দুর্গাপুর। ওদিকে ব্যাটার কিন্তু একটু সংঘর্ষ করছে ওখানে সুমিত ঢেকলে। तो जो लोग दूर हैं और दुर्गापुर अगर आप ग्राउंड से नज़दीक है तो आप आ सकते हैं, कोई मूल्य है नहीं आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आइए और मैच देखिए। दुर्गापुर धमाका बिग बैश, शहीद भगत सिंह स्टेडियम। सिंगल ब्लाइंड बॉल से स्ट्राइक पाएंगे अब नदीम धनोरी। দুটো দলের কাছে আজকে দিনের প্রথম ম্যাচ। অ্যাঞ্জেল কলকাতা চিন্তিত হবে ড্রেসিং রুম। কর্ণধার অরিন্দম ধর এবং জার্সি স্পন্সর করেছেন লাইফ কেয়ার হসপিটাল। অন্যদিকে শেরে বেঙ্গল সৌম্য একাদশ এবং সোনামুখী ক্রিকেট একাডেমি হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল। অনেক ধন্যবাদ দলের জার্সিগুলি স্পন্সর করার জন্য। অফিসিয়াল কিট পার্টনার। शॉट ऑफ लेंथ वेट किया नहीं दिया, हालांकि पीछे फील्डर लगा रखा है वहां पे। अच्छा प्लेसमेंट, 2 की मांग काफी तेज, सही टाइम पे मना किया, वापस पहुंचे। कुरन सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। এখনো পর্যন্ত প্রায় 1.5 ওভারে খেলা হয়ে গেছে, কোনো বাউন্ডারি আসেনি। স্কোর বোর্ডে রান সংখ্যা মাত্র 4 দেখতে পাচ্ছি আমরা। তো এখান থেকে ওয়েট চলছে, বড় শট কখন আসবে, কতটা সময় নেবেন দুই ব্যাটার নদীম ধনুরি এবং সুমিত ঢেকলে। तो देखिए ज्यादा समय आप ले नहीं सकते क्योंकि 6 ओवर का मैच है, फॉर्मेट छोटा है। शॉट ऑफ लेंथ, फिर से एक बार सिंगल तो भागेंगे। विकेट के पीछे पुटू। তফাফুল ইন্টারন্যাশনাল কমেন্ট্রি বক্স থেকে আমরা সেই ছোট থেকেই শুনতাম সিঙ্গেল ডাবলস এগুলোকে কন্টিনিউ রাখতে হবে। এবং এই ফরম্যাটে যখন আমরা এই মাঠে এলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু সিঙ্গলস ডাবলসের গুরুত্বটা কতটা বেড়ে গেছে। जी बिल्कुल, अगर आपके बैट से रन नहीं बनते हैं तो आप सोचते हैं कि क्या करें, क्या अलग ट्राई करें। अलग अलग गेंदबाज के विरुद्ध आप अलग अलग प्लानिंग करने होंगे आपको। अभी तक 5 रन लगे बोर्ड पे। তো ডিসিশন পেন্টিং রয়েছে এখানে। চলমান দ্বিতীয় ওভার। অনেক ধন্যবাদ দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয়। শুধুমাত্র দুর্গাপুর নয়, শুধুমাত্র বাংলা নয়, সারা ভারতবর্ষের দৃষ্টি যে টুর্নামেন্টের দিকে। ইস্পাত নগরী দুর্গাপুরে নজর। 13 থেকে 16 12 তারিখ শুভ উদ্বোধন হয়েছিল এই টুর্নামেন্টের। সেদিনই বোধহয় একটা আওয়াজ দেওয়া হয়েছিল, নজর থাকুক দুর্গাপুরে।
फिर से एक बार प्रयास, नदीम धनोरिया स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छी गेंद, कोई रन इस बॉल से। तो ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद स्कोर 5 बिना कोई विकेट खोए, 5 for no loss। দুটো ওভার, প্রথমে অঙ্কিত সিং কালকি 2 রানের একটা ওভার এবং তারপর কৃষ্ণমূর্তি যাদব 3 রানের একটা ওভার, সব মিলিয়ে 5 রান। চার মারো, ছয় মারো, ফেলো দেখি উইকেট। তো 4-6-এর এবং উইকেট পড়ার সবটারই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা চলছে। अंकित सिंह कल क्या बॉलिंग करने, पहली बॉल उठा के खेलने का प्रयास था, बॉल के नीचे पहुंचेंगे पुटू और एक आसान सा कैच यहाँ पे ड्रॉप करते हुए। এবং একটা দুর্দান্ত মানের থিম সং আমরা পেয়েছি ক্লাব সমন্বয়। ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা থিম সং উপহার দেওয়ার জন্য। এবং আপনাদের প্রত্যেককে জানিয়ে রাখবো এই থিম সংটা কিন্তু গেয়েছেন বাংলা টলিউড ইন্ডাস্ট্রির লিড সিঙ্গার, ফেমাস সিঙ্গার মিস জোজো। তো স্লোগান ছিল দুর্গাপুরের বুকে খেলা হবে এবং দেখতে পাচ্ছি দুর্দান্ত একটা খেলা হচ্ছে। कवर पे खेलने का प्रयास था, पीछे फील्डर पहुंचेंगे कोकन हल्दर, अच्छा प्रयास, वेट किया आने दिया, देखना कितने रन भागते, 2 की मांग, आसानी से मुकम्मल करते हुए। तो यहां 2 को 3 में बदलने का प्रयास है। বাংলার বুকে ক্রিকেটের মানচিত্রে একটা বিপ্লব দেখতে পাচ্ছি আমরা। অনেক ধন্যবাদ দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয় এবং হেমন্ত বনিয়ালজি। সম্মিলিতভাবে যেভাবে সারা বাংলার বুকে এত বড় একটা টুর্নামেন্টের আয়োজন হলো তার জন্য ধন্যবাদ। ওদিকে 70 স্পোর্টস তার রিপ্লেতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি ঘটেছিল ঘটনা। शॉर्ट ऑफ लेंथ, बहुत देर से वेट करते सुमित डेगले, इस बार फिर से मौका दिया फील्डर को, लेकिन फील्डर ने मौका दिया 6 रन के लिए। প্রথম বড় শট এলো এবং সেটা এলো ওভার বাউন্ডারির মাধ্যমে। প্রথম ছক্কা এই ইনিংসের এই ম্যাচের। फिर से प्रयास था, इस बार बिल्कुल अपने स्थान से खेले, पैर बिल्कुल नहीं चला। अच्छी वापसी अंकित सिंह कल की, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, गति का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, चेंज ऑफ पेस बीच में डालते हैं कभी कभी, तो वही मुश्किल होता है बल्लेबाज के लिए पढ़ना। फिर से एक बार तैयार होते हुए सुमित डेगले, ये देखिए फिर से एक बार स्लोवर, साथ में लो रही पड़ने के बाद बिल्कुल समझ नहीं पा रहे। তো টিমের অন্যতম কর্ণধার সুকান্ত দত্ত অত্যন্ত চিন্তিত এই মুহূর্তে। সুমিত ঢেকলের ব্যাট চললেই একমাত্র মুখে হাসিটা ফুটবে, সে কারণে একটু চিন্তিত দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে। তবে মানব মুখার্জি পাশ থেকে উৎসাহ বাড়াচ্ছেন, ওয়েট করো, খেলা বাকি আছে এখনো।
तो 3 ओवर के बाद स्कोर 15 बिना कोई विकेट को है, 15 फॉर नो लॉस। প্রথম ওভারে 2, দ্বিতীয় ওভারে 3 এবং তৃতীয় ওভারে 10, সব মিলিয়ে 3 ওভারে 15। शॉट ऑफ लेन, जगह बनाकर पीछे फील्डर है, क्या चांस बनेगा? जी नहीं, मौका है दर्शक के पास 6 रन के लिए। তো ডাব্লিউ, এটাও একটা দুর্দান্ত টেকনোলজি দেখতে পাচ্ছি, টেকনোলজির একটা দুর্দান্ত ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি। ম্যাচ ডিলে হওয়া, ম্যাচে অতিরিক্ত সময় নেওয়া নিয়ে অনেক সমস্যা হয়, তবে এখানে যেভাবে আজকে টাইমার সেট করা হলো জায়ান্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে, এবং সব সময় যেটা বারবার অ্যাওয়ার করা হচ্ছে এখানে খেলোয়াড়দেরকে, হ্যাটস অফ ক্লাব সম্মেলনী, ক্লাব সমন্বয়, যারা আরও একটা বিপ্লব ঘটালো এখানে দুর্গাপুরের বুকে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের বুকে। तो बिल्कुल इससे कहीं ना कहीं काम आसान हो जाता है सभी के लिए कि आप टाइम का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। किसी भी क्षेत्र में हो, टाइम का सदुपयोग करना होगा आपको। नदीम धनोरी अच्छी लाइन में बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभी तक 7 बॉल से 11। फील्डिंग में क्या थोड़ा सा परिवर्तन, मिड विकेट को थोड़ा वाइड कर रहे हैं लॉन्गर की तरफ। यहाँ पे देखिए 9 बॉल दी जाएगी निश्चित तौर पे, काफी ऊपर कमर से समझ गए थे नदीम, 7 में 1 रन भागेंगे बाई के रूप में। রাজা মুখার্জি, শুভ দাস মন্ডল ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে যারা রয়েছেন, অন্যদিকে গোপাল সাউ এবং রঞ্জিত পারিদা 3rd and 4th আম্পায়ারের ভূমিকায়। তো সবাই ব্যস্ত ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয়। तो अगली बॉल फ्रीट होगी और सामने होंगे सुमित, बड़े शॉट लगाना चाहेंगे, मौका इनके पास, फ्रीट बॉल है, आउट तो होंगे इस बॉल पे रन आउट छोड़कर। तेईस रन अभी तक लगे बोर्ड पे, कोई विकेट नहीं। चौथा ओवर कृष्णमूर्ति बॉलिंग कर रहे हैं। पहला अगर ओवर देखें तो वहां पे मात्र 2 रन दिए थे, इस ओवर से 9 रन आ चुके अभी तक। একদমই 2 রান এবং তার পরের ওভারে 3 রান ছিল, তো 5 রান 2 ওভারে। থার্ড ওভারে প্রথম ওভার বাউন্ডারি এসেছিল, আর এবার সুমিত ডেকলে ব্যাট ছোঁয়ার পর মাঠের ওপারে। तो ये देखिए किस तरह से शॉर्ट ऑफ लेन था, बहुत जल्द आगे पोजीशन में, अच्छा पिक किया और काफी दूर गई बाउंड्री से सुमित डेकले। গ্রিন গ্যালারিতে বারবার আছড়ে পড়ছে বল, দলের রান বাড়ছে, আর আমরা দেখেছি এই টুর্নামেন্টে এবছর এখনো পর্যন্ত এভারেজ স্কোর 40 to 45 এর মধ্যে থেকেছে, ফাইটেবল টোটাল। अब बिल्कुल अब वो टोटल डिफेंड भी होते हुए देखे हम लोग और चेस करते हुए भी, तो 40 से 50 एक अच्छा टोटल कह सकते हैं कंडीशन के हिसाब से, इस ग्राउंड के हिसाब से। ওদিকে মাঠের বাইরে থেকে মিস্টার দুর্গাপুর সরোজ ওয়াচ করছে এখানে। গ্রুপ সি এর খেলা রয়েছে আজকে, দল নামবে এবং খুব কাছাকাছি অঞ্চল থেকে কিন্তু আর ব্রাদার্সের ক্রিকেট মস্তিষ্ক তারাচরণ চ্যাটার্জিও কিন্তু তীক্ষ্ণ নজর রেখেছেন মাঠের উপর, লড়াই হবে। बिल्कुल आज से नहीं, शुरू से ही नजर रख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं ग्राउंड को, कंडीशन को समझ रहे हैं मिस्टर सरोज और ताराचरण चटर्जी दोनों। ये शॉट बेहतर है लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में दे जाएंगे, जाना होगा वापस सुमित को। 15 बॉल से 17। रवि थे फील्डर, তো সঙ্গম তিওয়ারি, দীপলের মতন ব্যাটার রয়েছে, ওদিকে রিপ্লেতে দেখতে পাচ্ছি অফ স্টাম্পের বাইরে বল ছিল, ফুলের লেন্থ ছিল, ওখানে এক্সট্রা কভারের দিকে বড় শট খেলার ইচ্ছে ছিল, তবে রবি ওখানে ওয়েট করছিল এবং সেফ হ্যান্ডসে জমা হয়েছে বল, উইকেটের পতন। তো আমরা বলছিলাম দীপল, সঙ্গম তিওয়ারির মতন ব্যাটাররা রয়েছে ব্যাট করতে আসা, বাকি কাকে পাঠানো হবে?
তো এখানে বাঁহাতি ব্যাটার আউট হয়েছে, যে কারণে বোধহয় একজন লেফটিকেই মাঠের মধ্যে ইন্ট্রোডিউস করা হলো। ওদিকে আমাদের প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, তো দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয়ের পক্ষ থেকে আপনাদেরকেও অনেক অনেক ভালোবাসা, ভালোবাসার দিন আজকে, এবং ক্রিকেটকে ঘিরে আমাদের ভালোবাসাটা থাকবে প্রত্যেকেরই। মাঠের বাইরে যারা এসেছেন তাদের প্রতিও আমাদের এই ভালোবাসাটা থাকবে। बिल्कुल बहुत ही खुश हैं। আর যে কোনো মুহূর্তে কিন্তু গ্যালারিতে পৌঁছে যেতে পারে ধামাকা বিগ ব্যাশ দুর্গাপুরের টি শার্ট, স্পন্সর্ড বাই एंड प्रेजेंटेड बाय मिस्टर हेमंत बनियाल जी। संगम तिवारी है बैटिंग करने के लिए, झारखंड से बिलोंग करते हैं, काफी क्रिकेट खेलते हैं, चाहे वो लेदर बॉल हो या फिर टेनिस बॉल। सामने तैयार आते ही और अपने अंदाज में ये शॉट खेलना पसंद करते हैं, आते ही शानदार 6 रन के लिए। ভালো সংযোগ এবং নিজের প্রিয় জোন দিয়ে বলটাকে মাঠের বাইরে পাঠানো হয়েছে, মিড উইকেটের উপর দিয়ে 6টা রান। संगम फिर से एक बार तैयार होते हुए अगली बॉल के लिए। ये शॉट खेलने का प्रयास था मिड विकेट पे, गेंद गई विकेट के पीछे, टॉप पेज लगकर कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, चौका मिलेगा। ओवर की होगी समाप्ति और 4 ओवर के बाद 41 एक विकेट, 41 फॉर 1 आफ्टर 4 ओवर। তো আমরা 70-70 লাইভে দেখলাম রিপ্লেতে কিভাবে বাউন্ডারিটা এসেছিল, বল ব্যাটের টপে ছুঁয়েছিল ওখানে এবং সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল উইকেট কিপার এবং স্লিপ ফিল্ডারের মাথার উপর দিয়ে 4টে রান। 4 ওভারে খেলা শেষ, 4 ওভার শেষে রান সংখ্যা 41, 1 উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ শেরে বেঙ্গল সৌম্য 11 সোনামুখী ক্রিকেট একাডেমি দলের। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত ছিল দীপ পলের এবং প্রথম 4 ওভার থেকে সংগৃহীত রান সংখ্যা 41, 10 করে প্রত্যেক ওভারে এই মুহূর্তে কারেন্ট রান রেট। वरुण है बॉलिंग करने के लिए, 5वां ओवर वरुण बॉलिंग करेंगे और सामने स्ट्राइक पे फेस करेंगे नदीम धनोरी। दिल स्कूप करने का प्रयास था, बिल्कुल लाइन को समझ नहीं पाए, कोई रन नहीं पहली बॉल से। এবং এখনো পর্যন্ত বোলারদের যেভাবে ইউজ করা হয়েছে, কৃষ্ণমূর্তি যাদব 2 ওভার বল করে 28 রান দিয়ে একটা উইকেট, অঙ্কিত সিং 2 ওভার থেকে 12 রান, বরুণ সিং এসেছে বোলিং করার জন্য পাঞ্জাব তনয়। ওদিকে যে কানেকশনটা হয়েছে মাঠের ওই পারে, तो सुपर 6। तो ये देखिए किस तरह से ये छक्का लगा था, बहुत देर से वेट कर रहे थे नदीम, बहुत ऊपर बॉल थी। सामने फिर से एक बात है नदीम, फिर से कोशिश, इस बार थोड़ा लो था पिछले बॉल की अपेक्षा, अपने आप से नाखुश है नदीम, कोई रन नहीं। 5वां ओवर जा रही, 47 पे अभी तक। রিসেন্ট টুর্নামেন্টসে যদি কথা বলি, কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ যেখানে কিন্তু বরুণ কুমার ভালো বোলিং করেছিল, সেই ফর্মটা ধরে রাখার চেষ্টা হবে। ये कहना के लेंथ में चूक है और दिशा से बढ़ के चौका मिलेगा नदीम को, रन चाहिए चाहे वो जैसे आए। বরুণ কুমার এক্ষেত্রে পড়ার পর বল শরীরের ভেতরের দিকে ঢুকে আসছিল এবং সেই জায়গাতে নজর রেখেছিল। নদীম ধনুরি ঘুরিয়ে খেলা শট, নোম্যান্স লাইন দিয়ে বল বেরিয়ে গেছে, 4টে রান। तो जो देखिए जो डॉट बॉल जो कर रहे थे उसका जो दबाव बन रहा था, वो दबाव को निकाल दिया अपने ऊपर से। स्लोवर फिर से कोशिश, वाइड बॉल, 1 रन फिर से जुड़ेंगे खाते में एक्स्ट्रा के रूप में। स्कोर बढ़ता हुआ 52, 52 रन अभी भी 100 ओवर के बाद 1 ओवर बाकी है। करेंट रन रेट अगर देखिए 10.92।
तो एक अच्छा टोटल कह सकते हैं आप अभी तक जो कंडीशन रही इस ग्राउंड पे, इस पिच पे। अगली बॉल दूर रखने का प्रयास, कितनी भी दूर ना रखिए कि वाइड दिए जाएंगे। एक और सिंगल। তো প্রথম দুটো ওভার 2 রান এবং 3 রানের, এবং তারপর আমরা দেখলাম এখানে যখন কৃষ্ণমূর্তি যাদব তার ব্যক্তিগত স্পেলে দ্বিতীয় ওভারটা বল করতে এসেছিল, 26 রান খরচ করেছিল। এ মাঠে 26 রানের একটা ওভার, দ্যাট মিন্স কিন্তু পজিশনটাকেই পাল্টে দিতে পারে। नदीम धनोरी इस बार फिर से सामने बॉल थी, बिल्कुल पैर के पास, कोई गलती नहीं, भेजा बाउंड्री के उस पार। एक और ओवर बाउंड्री। ओह क्या शॉट है, ये शॉट देखने लायक है। एक बार नहीं बार बार देखिए नदीम धनोरी। 65 এ পৌঁছে গেল স্কোর এখানে। অন্তিম বলে যে শটটা ছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি, তো টোয়ের উপরে আসা বল ছিল, নদীম নজর জমিয়ে রেখেছিল, এবং তারপর ব্যাট বলের যে কানেকশনটা একদমই দেখার মতন। তো কলিন মুনরোকে ইন্টারন্যাশনালে আমরা দেখেছি এই ধরনের শট খেলতে। और देखिए उसी टीम में है अभी, अगर बात करें नदीम धनोरी की टीम में सौरभ हल्दर, तो ब्लाइंड शॉट खेलना पसंद करते हैं ये सब खिलाड़ी। ओवर की समाप्ति 65 रन, 5 ओवर, आखिरी ओवर अब इस पारी का। তো ক্রিকেটে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়, তবে যে রানটাই চলে গেছে এখানে সৌম্য একাদশ শেরে বেঙ্গল সোনামুখী ক্রিকেট একাডেমি দল, ড্রেসিং রুম আপাতত নিশ্চিন্ত হতে পারে। বোলারদের জন্য একটা জায়গা কিন্তু তৈরি হয়েছে। तो दिवाकर को बुलाया बॉलिंग करने के लिए। अब देखिए आखिरी ओवर सुंदुदा। তো আমার মনে হয় দিবাকরের একটু আগে এলে হয়তো একটা অপশন বেশি বাড়তে পারতো। দিবাকর ভেতরে এবং বাইরে দুদিকে কাট করানোর ক্ষমতা রাখে, বড় মাঠ রয়েছে, উইকেট তোলার যে ক্যাপাসিটি দিবাকরের মধ্যে রয়েছে। বাংলার যে কজন বোলার একদম উপরের দিকে কিন্তু দিবাকরের নাম রয়েছে সেক্ষেত্রে। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर एक ओवर पहले आते तो शायद 2 ओवर का जो ऑप्शन होता वो बनता है इनके लिए, लेकिन यहाँ आखिरी ओवर बॉलिंग करेंगे दिवाकर। इससे पहले भी बिग बैश में अच्छी गेंदबाजी कर चुके हैं दिल्ली, जब बिग बैश रहा था। दिवाकर गायन बॉलिंग करेंगे, सामने होंगे संगम तिवारी। फर्स्ट बॉल लो फुल टॉस, मिड ऑफ अंदर खड़े हैं, एक्स्ट्रा कवर के फील्डर भागेंगे लॉन्ग ऑफ की तरफ, बहुत दूर बॉल उनसे पहुंचेंगे, तब तक 2 रन पूरा करते हुए संगम और नदीम। তো এটাও দেখার মতন, সঙ্গম যখন নন স্ট্রাইক এন্ডে পৌঁছেছিল, নদীম প্রায় হাফ দ্বিতীয় রানের জন্য পেরিয়ে গিয়েছিল ওখানে। वो देखिए समझ गए थे कि फील्डर बहुत दूर है, आराम से 2 रन भागेंगे। 67 अभी तक स्कोर बोर्ड पे, आखिरी 5 गेंदें शेष अब यहां से। सामने संगम, मिड ऑफ अंदर है और रहेंगे भी अगर लॉन्ग ऑफ में तो कोई मौका नहीं उनके लिए। शानदार बाउंड्री। এখনো পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টের দলগতভাবে হাইয়েস্ট স্কোর বানিয়ে ফেললো এখানে শেরে বেঙ্গল সৌম্য 11 সোনামুখী ক্রিকেট একাডেমি। तो पिछले बॉल से बाउंड्री मिला, चौका था पिछला बॉल। स्कोर 71। वेट क्या नहीं दिया, दिशा से कहीं ना कहीं भटके थोड़े से, और फायदा मिला संगम तिवारी को। बेहतरीन 6 रन। তো আফাফুল বেঙ্গল ক্রিকেটে আমরা যে চেনা ছবিটা দেখি 4-6 বর্ষা হতে থাকা, সেটা মনে হয় দেখতে পাচ্ছি এখানে। थैंक यू डीजे। तो देखिए 2 ओवर 5 रन, उसके बाद से टीम किस तरह से वापसी की शेरे बंगाल सोमा 11 सोनामुखी क्रिकेट एकेडमी। फिर से एक बार पांव पे गेंद लगी, यहाँ पे भाग पड़े नदीम। वो जानते हैं कि स्ट्राइक चेंज करते रहे, लेग बैक रूप में 1 रन। नाउ स्कोर मूव 79। आखिरी 2 गेंदे
78 on scoreboard. বড় শটের চেষ্টা ছিল, এখানে কাট করে একটু বাইরের দিকে বেরিয়েছিল। তো 31 রানের মাথায় প্রথম উইকেটের পতন হয়েছিল, 31 31 রানের মাথায়, এবং তারপর 57 রানের পার্টনারশিপ, দুর্দান্ত একটা পার্টনারশিপ এখানে নদীম এবং संगमेर मध्य। तो देखिए आखिरी ओवर से 14 रन दिवाकर का, पहले 2 ओवर से 5 टोटल, उसके बाद 4 ओवर 75 रन जोड़े, और बीच का जो ओवर था मारुत कृष्णमूर्ति का, वो कहीं ना कहीं टीम को मोमेंटम दिया। शेरे बंगाल सम 11 सोनामुखी क्रिकेट एकेडमी। तो पहली पारी की समाप्ति 6 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा 78, दैट मींस टारगेट 79। जीतने के लिए बनाने होंगे 79 रन 6 ओवर में एंजल कोलकाता को। তো 79 রান করতে হবে এখানে অ্যাঞ্জেল কলকাতা দলকে। তো আমরা যদি দেখি নদীম ধনুরি 15 বল থেকে 33 রান, 4টে ওভার বাউন্ডারি, একটা বাউন্ডারি। সুমিত ঢেকলে 15 বল থেকে 17 রান, 2টো ওভার বাউন্ডারি। সঙ্গম তিওয়ারি 7 বল থেকে 24 রান, সব মিলিয়ে 78, 79 রান টার্গেট। বোলারদের পারফরমেন্স দেখতে চাইবো একবার। কৃষ্ণমূর্তি যাদব 2 ওভারে 28 রান দিয়ে একটা উইকেট। অঙ্কিত সিং 2 ওভারে 12 রান, সব থেকে ভালো বোলিং এ ম্যাচে। দিবাকর লাস্ট ওভারে মাত্র 14 রান, তো দিবাকরের ক্ষেত্রেও কিন্তু ভালো বোলিং। বরুণ কুমার এক্সপেন্সিভ 1 ওভারে 24, তো 2টো ওভার বরুণ কুমারের 1 ওভারে 24, এবং তার সাথে সাথে হ্যালো সুমন দা, একটু বলে দাও এই ম্যাচটা কত টাইমে শেষ হয়েছে, একটু বলে দাও পাবলিকদের। তো টাইমের আগেই শেষ হয়েছে। আমরা ধন্যবাদ জানাবো অ্যাঞ্জেল কলকাতার সমস্ত ফিল্ডার এবং ক্যাপ্টেনকে, যে তারা 30 মিনিটের আগে তো সরোজ, সব থেকে বড় কথা হচ্ছে অনেকগুলো ওভার বাউন্ডারি হয়েছে, তা সত্ত্বেও প্রায় 1 মিনিটের থেকেও বেশি সময় আগে খেলাটা শেষ হয়েছে। হ্যাঁ সেটাই আমি বলছি, মাঠ এত ভালো কি বল হারানোর কোনো প্রশ্ন নেই, এই জন্য খেলাটা এত রানিং হচ্ছে। আর প্রত্যেকটা ইনিংসে যেন এইটাই মেনটেন হয়, যে আমাদের ম্যানুয়ালি স্কোরিংয়ের জায়ান্ট স্ক্রিনের নিচে যে বসেছে তাকে এইটা আমি বলছি, তারা যেন এই দিকটা নজর রাখে। তো প্রশংসা করতে হবে এখানে পুরো ক্লাব সমন্বয়, দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয়ের প্রথমতই মাঠটা চুজ করার জন্য। সারা বেঙ্গল নয়, সারা দুর্গাপুর নয়, সারা ভারতবর্ষ প্রশংসা করছে, এত ভালো একটা মাঠে খেলা হচ্ছে। খেলোয়াড়েরা এসে বলছেন ইন্টারন্যাশনাল মাঠে খেলছি যেন মনে হচ্ছে। পিচের দায়িত্বে যারা আছে তারা ইনিংস শেষ হয়ে গেছে, পিচের দায়িত্বে যারা আছে, পিচের চুনটা আর পিচের দায়িত্বে যারা আছে তো দ্বিতীয় ইনিংসে আমরা ফিরবো। অ্যাঞ্জেল কলকাতা করতে হবে 79 রান। ভিকি সিং, গোপাল সিং, পুটু সাহা, খোকন হালদারের মতন ব্যাটাররা রয়েছে যারা বাংলার মাঠ কাঁপিয়েছে এর আগেও। দুর্গাপুরের মাটিতে কি আবারও একবার একটা দুরন্ত নক, রানচেজ আমরা দেখতে পাবো? সব মিলিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে আমরা আসবো। কমেন্ট্রি বক্সে পালা বদল। ইয়াসিন মার্চেন্ট স্যার and चंदू सेठी सर के वेलकम आरो एक बार स्वागतम दादा। धन्यवाद। जिनकी आवाज़ माइक्रोफोन पर आप सुन रहे थे वो थे सुमंतो सर। धन्यवाद। मैं यासीन मर्चेंट फिर से एक बार इस मैदान पर आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, और उसी के साथ साथ यूट्यूब के ज़रिए से, यूट्यूब चैनल 7070 से जो भी प्रेक्षक इस मैदान से जुड़े हैं, हमसे जुड़े हैं, उनका भी दिल की गहराई से मैं इस्तकबाल करना चाहूँगा। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट। হ্যালো, পিচের দায়িত্বে যারা আছে বিধানদা, কাজুদা, তাদেরকে বলছি প্রত্যেকটা ইনিংস শেষ হবে তোমরা তোমাদের কাজ নিয়ে চলে যাবে, কারণ প্রত্যেকটা ইনিংসের পর যেটা চুনের দাগ আছে ওইটা দিতে হবে, কারণ লাইভে যখন থার্ড আম্পায়ার রান আউটে ডিসিশন দেবে তখন একটু তাতে লাইভের অসুবিধা হবে। তাই প্রত্যেকটা ইনিংস শেষ হওয়ার পর তারা চুনের দাগটা ম্যান্ডেটরি করবে ওইটা।
धन्यवाद डीजे मास्टर। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में हम देख रहे हैं धमाका बिग बैश 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय दुर्गापुर क्लब समन्वय, प्रेजेंट बाय हेमंत बनियाल सर। इस प्रतियोगिता का ये दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये दूसरा मैच जारी है। एंजल कोलकाता बनाम शेर बंगाल। मैच यहां पे शुरू हो चुका है। सलामी बल्लेबाज के रूप में हम देख सकते हैं 2 बल्लेबाज और उसी के साथ गेंदबाज के रूप में शफी अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। शशि आए हैं अपना निजी पहला ओवर लेके। जी हाँ, फिर से एक बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, ऑफ स्टंप के बाहर गए थे और क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया था। उस गेंद को पुल करने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ यहाँ पे अकाउंट हो चुका है रनों की संख्या का। रवि और नॉन स्ट्राइक उनके साथी बल्लेबाज गोपाल। स्ट्राइकिंग इन पर हम देख सकते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज गोपाल, जबकि नॉन स्ट्राइक के इन पर रवि। छह ओवर का ये मुकाबला पहले बल्लेबाजी करते हुए 79 रनों का यहाँ पे टारगेट रखा है जीत हासिल करने के लिए। बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है गेंदबाज शशि ने। अब तक 3 गेंदें डाली जा चुकी है और 2 रन खर्च किए हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम अर्थात शेर बंगाल ने बहुत ही बढ़िया प्रभावित किया था, जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, 78 रन जोड़े थे। आहा, फिर से एक बार बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त तेज तर्रार गेंद थी। कट करने की क्षमता, सलाहियत, काबिलियत यहां पे नजर आ रही है, क्योंकि 30 गज के दायरे के अंदर गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता और उसके बावजूद यहां पे जी हाँ, इस मरतबा गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में एक आसान सा कैच और बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन। इसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ। बड़े लक्ष्य का पीछा करना था और उस समय बड़े बड़े स्ट्रोक भी लगाने जरूरी थे पहले ओवर में पावर प्ले के। और रवि अहिरे ने वो प्रयास भी किया मगर प्रॉपर टाइमिंग नहीं कर सके और इस कारण पहले ही ओवर में उन्हें वापस लौटना पड़ा। शशि यहाँ पे कामयाब गेंदबाज, 30 गज के दायरे में पहला झटका दिया है। रवि आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं प्रशांत घरत। अंपायर से गार्ड लेने के बाद मुआयना करते हुए, मुआयना किया फील्डिंग का, अब खेलने के तैयार। जी हाँ, फिर से एक बार विकेट से हट चुके हैं। देखिए 30 गज के दायरे में किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है। शॉर्ट थर्ड मैन, उसी के साथ एक शॉर्ट फाइन लेग, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन। ओहो, फिर से एक बार ऑप्शन के बाहर ललचाना चाहते थे, लालच भरी गेंद थी। उस गेंद के ऊपर शॉट खेलने का प्रयास भी किया था मगर गेंद उनकी रेंज से बहुत ही दूर थी। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद, अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। आहा, मगर इस मर्तबा बल्लेबाज को आंखों में धूल झोंकते हुए गेंदबाज नजर आए। क्या कमाल की ऑस्टनिशिंग और
आश्चर्यकारक ये गेंदबाजी। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, मात्र 2 रन खर्च किए, 3 रन खर्च किए हैं, एक सफलता अर्जित की है। सेवेंटी 79 इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा टारगेट यहाँ सेट किया है, मगर उसका पीछा करते हुए क्या गेंदबाजी रही है शशि, क्या बात है। और मैदान पर स्क्रीन पर हम देख सकते हैं एक छोटा बालक एंजॉय यहाँ पे कर रहा है। उसी के साथ साथ हम बड़े मंच पर, मुख्य मंच पर, जहाँ पे अतिथि और इस टूर्नामेंट को जिन्होंने प्रेजेंट किया है वो हेमंत बनियाल सर भी देख रहे हैं। उनके बहुत सारे मुख्य गेस्ट अतिथि इस मैच का आनंद लेते हुए, लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मंच को सजाया गया है, पूरे मैदान को दुल्हन की तरह यहाँ पे सजाया गया है। कमाल का ये टूर्नामेंट, बहुत ही लाजवाब प्रतियोगिता। लगातार 4 दिन यहाँ पे क्रिकेट का खेल होगा। इस प्रतियोगिता का ये दूसरा दिन, दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं। जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ एलिवेशन दिया है। 2 खिलाड़ियों के बीच में जो दरार थी वहां से गेंद हुई है फरार, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। धन्यवाद डीजे। एजाज मंडरेला नए गेंदबाज जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अब जी हाँ, एक विशेष सूचना जरूर मैं बताना चाहूंगा। 30 मिनट में किसी भी हालत में आपको एक इनिंग यहाँ पे समाप्त करनी है, वरना यहाँ पे आपको अगर पैनलाइज किया जाएगा तो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। अंपायर जी की तरफ से यहाँ पे नो बॉल का इशारा, नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन भी मिलेगा, उसी के साथ यहाँ पे फ्री हिट भी मिलेगा, यानी आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। रनों की संख्या हो चुकी है 8 रन स्कोर कार्ड पर। दूसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पथ पर। पहले ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए थे गेंदबाज शशि ने और एक सफलता अर्जित की थी, एक विकेट अपने नाम किया था। इजाज राइट आर्म राउंड द विकेट, तेज तर्रार यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए उस गेंद को कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे, पूरी तरीके से असफल रहे थे, मगर नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं था। उसका फायदा दोनों भी बल्लेबाजों ने उठाया और तेजी के साथ आंखों आंखों में इशारा करते हुए रन चुरा लिया। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में वृद्धि होती हुई 9 रन स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है चंदू सर। देखिए इतनी ज़बरदस्त शुरुआत, क्योंकि एक बड़ा टारगेट उनके सामने है। 79 रन बनाने हैं, 6 ओवर का ये मुकाबला है और 30 गज का दायरा मौजूद होने के बावजूद इस तरह की अगर गेंदबाजी होगी तो आगे क्या हो सकता है, क्या कहोगे? नहीं, अभी भी मैच है। अगर बड़े बड़े स्ट्रोक आते हैं तो मैच हो सकता है, बन सकता है। क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है, मगर शुरुआत अच्छी की है गेंदबाजों ने, जो दबाव बढ़ाया है बल्लेबाजों के ऊपर। बल्लेबाजों को थोड़ा सा रिस्क उठाना होगा। और देखिए मैदान में हवा का असर, उसी के साथ तेज हवा भी चल रही है और हम यहाँ पे ठंड भी महसूस कर रहे हैं। और इस माहौल में गेंदबाज को विकेट और इस वातावरण का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गेंद हवा में थोड़ी सी स्विंग हो रही है और उसी के साथ साथ टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ बल्लेबाजों को चकाती हुई नजर आई, मगर इसके पहले कुछ अलग ही वातावरण दिखाई दिया। बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की थी, मगर अब यहाँ पे रनों को सुखा दिया है। 1-1 रन के लिए यहाँ पे मशक्कत करनी पड़ रही है। फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, उसे ढीले हाथों के साथ मात्र पुश कर दिया। पुश करो और खुश रहो, इस तरह से यहाँ पे ये खेल चलता हुआ, मगर इस तरह से ये काम नहीं बनेगा।
अगर इस मैच को जीतना है तो आपको रिस्क उठाना होगा। मैं अक्सर कहता हूं कि जिंदगी का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, रिस्क तो उठाना है। रिस्क उठाओगे तो ही यहाँ पे कुछ काम बनेगा, क्योंकि एक लंबा सफर आपको तय करना है। इस सफर को अगर तय करना है तो किसी भी हालत में अपनी सोच को बदलो। जी हाँ, इस मरतबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, लालच भरी गेंद थी। हालांकि खेलने का प्रयास भी था मगर बहुत शरीर से दूर खेला था, अवे फ्रॉम द बॉडी। अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाते हुए इशारा कर दिया है वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार मिलेगा। 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, इस मरतबा गेंद पाले में, उसे मात्र दिशा भर दी, हवा में गेंद जरूर दी मगर फील्डर से काफी दूर। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। सर देखिए, बहुत ही लंबे समय के बाद यहाँ पे चौका आता हुआ, इसी तरह से बड़े स्ट्रोक का बेसब्री से इंतजार है डगआउट में। अंतिम एक गेंद इस ओवर की। जी हाँ, फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद के ऊपर यहाँ पे बल्लेबाज को छकाने में कामयाब रहे शशि। देखते देखते दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर के मुकाबले में ये ओवर हालांकि बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा समाधान कारक रहा है सर, क्योंकि पहले ओवर में 3 रन और दूसरे ओवर में 12 रन, कुल मिला के 15 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। सर शुरुआत थोड़ी सी धीमी जरूर हुई है मगर अभी भी बड़े बड़े स्ट्रोक लगेंगे तो मैच बन सकता है। और वो स्ट्रोक लगाने के लिए जाने जाते गोपाल सिंह एक बड़े खिलाड़ी है, वेस्ट बंगाल के लीजेंड है। दूसरी तरफ प्रशांत गरत, इन्होंने भी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला। दर्शक भारी मात्रा में इस मैच को देखने के लिए, और दुर्गापुर का एक क्रिकेट फेस्टिवल है और उसे देखने के लिए कल भी काफ़ी मात्रा में दर्शक आए थे। आज भी दर्शक काफ़ी मात्रा में इस टूर्नामेंट को देखते हुए। फिर से एक बार नए ओवर के लिए शशि आए हैं अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके। जी हाँ, ऑप्शन के बाहर पहले ही सफल हो चुके थे, उसे ओवर पिच बनाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ एलिवेशन दिया है। गेंद काउ कॉर्नर सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में ये आता हुआ धमाका सिक्सर। प्रशांत गरत कुछ अलग तरीके का स्टांस उनका है, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर लेते, बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने में कामयाब रहते और एक बड़ा स्ट्रोक आता हुआ। फिर से एक बार प्रशांत ने उठाया है मगर इस मर्तबा ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक आसान सा कैच, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएगा। शशि ने देखा था कि बल्लेबाज प्रशांत ऑप्शन के बहुत ही बाहर सफल हो रहे हैं। गेंद तकरीबन वाइड यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि गुडलेन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ गेंद निकल रही थी और उसे फिर भी जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की और अपना कीमती विकेट प्रशांत यहाँ पे गवा बैठे। जैसे मैंने कहा कि रिस्क उठाना चाहिए मगर इस गेंद को ऑफ स्टंप की दिशा में भी, ऑफ साइड की दिशा में भी खेल सकते थे और 4 या 6 रन बटोर सकते थे। अपना कीमती विकेट यहाँ पे खोया है प्रशांत ने। प्रशांत आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं विकी सिंह स्ट्राइकिंग एंड पर हमें नजर आ रहे हैं। कोलकाता के एक लेजेंडरी प्लेयर माने जाते हैं। ये लीजिए, उन्हें लेजेंडरी प्लेयर क्यों माना जाता है और वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गेंदबाजों को तहस नहस करने की पूरी तरीके से मुझ में क्षमता है, ये अपने बल्लेबाजी के रूप में दिखाते हुए ये लगता हुआ लंबा छक्का।
इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 27 पर। फिर से एक बार उड़ाया उसे, मगर इस मर्तबा लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर वहां पे तैनात, फील्डर को ढूंढ लिया और एक बल्लेबाज मैदान के बाहर जाएंगे। सर यहाँ बड़ी पारी की आवश्यकता है, क्योंकि इस ओवर में दूसरी बार ऐसा हुआ, एक बड़ा स्ट्रोक आया प्रशांत के बल्ले से, दूसरी गेंद पर आउट हुए, उसके बाद आते ही बड़ा स्ट्रोक खेला यहाँ विकी सिंह इन्होंने, और वो भी दूसरे ही गेंद पर चलते पड़े। यहाँ एक साझेदारी की जरूरत है और बड़ा लक्ष्य है, बल्ला तो घुमाना होगा मगर मैदान के ऊपर टिकना भी होगा। तीसरा विकेट आ चुका है, 27 रन स्कोर। एंजल कोलकाता यहाँ पे लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है। ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज आउट होने के बाद खासा मनोवैज्ञानिक दबाव अब मध्य क्रम के बल्लेबाजों के ऊपर आया है, मगर इस जिम्मेदारी को अंजाम देना होगा। इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं, पुटू शाह। पुटू शाह यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए हमें नजर आएंगे। देखिए अलग अलग तरह के नाम होते हैं, शाह भी होता है और साहा भी होता है, क्योंकि वृद्धिमान शाह को हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा है। शशि की इस गेंद को छोड़ दिया था और अंदाजा सही निकलता हुआ, क्योंकि शशि एक कोण बनाकर गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। हम स्क्रीन पर देख सकते हैं राइट आर्म राउंड विकेट यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं और ऑफ स्टंप के तकरीबन वाइड लाइन के तरफ वहां पे गेंदबाजी करने का उनका मानस। जी हाँ, इस मरतबा गेंद शरीर पर थी मगर उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ पुल कर दिया, मगर गैप ढूंढने में कामयाबी नहीं थी और इसी वजह से डीप स्क्वायर लेग की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और इसी वजह से बल्लेबाजों को अपने कदमों को पर ब्रेक लगाने पर मजबूर होना पड़ा। रनों की संख्या हो चुकी है 29 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहां पे प्रगति पर। गेंदबाज शशि, स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज हम देख सकते हैं गोपाल, जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान में आए थे। इस मरतबा स्विच हिट, अल्टी पल्टी उल्टा पुल्टा कुछ भी कहे मगर नतीजा देखिए, बहुत ही शानदार बल्लेबाजों के लिए यह लगता हुआ सिक्सर। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन हो चुके हैं चंदू शेट्टी सर। अब यहां पे सही मायनों में वापसी दिलाई है अपने टीम के लिए, क्योंकि पहले ओवर में लड़खड़ाती हुई पारी नजर आ रही थी। दूसरे ओवर में 12 रन आए थे, यानी कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन स्कोर कार्ड पर थे, मगर इस ओवर में हम देख सकते हैं तकरीबन 20 रन खर्च किए हैं गेंदबाज ने और इसी वजह से अब ये मैच बल्लेबाजों के पक्ष में भी जा सकता है। चंदू शेट्टी सर। जरूर सर, एक अच्छा मैच यहाँ देखने मिल रहा है। 79 रनों का पीछा करना है शेरे बंगाल सौम्या 11 हम एक तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ एंजल कोलकाता के बीच का ये मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करते हुए 78 रन बनाए थे, 79 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। 3 ओवर में 35 बन चुके हैं, 3 ओवर में 44 रनों की जरूरत अभी भी है, 44 बनाने। देखना होगा गोपाल सिंह जो रानीगंज से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी है, दूसरी तरफ पुटू साहा जो मेमारी से बिलोंग करते हैं। वेस्ट बंगाल क्रिकेट में 2 बड़े नाम मैदान के अंदर जरूर है, मगर देखना होगा गेंदबाजी के लिए। आशीष गेंदबाजी के लिए आते हुए। 3 ओवर अभी भी बाकी है इस मैच को जीतने के लिए, 44 रनों की जरूरत, मगर पुटू साहा एक बड़े खिलाड़ी है और अच्छी शुरुआत उन्होंने की है। देखना होगा इसी तरह से आगे भी बल्लेबाजी करेंगे। दुर्गापुर धमाका बिग बैश हम देख रहे हैं वेस्ट बंगाल के स्टील सिटी दुर्गापुर, और इस दुर्गापुर का एक बड़ा टूर्नामेंट। इस बार बैकफुट पर जाके कट करना चाहते थे, रफ्तार देखने मिली। आशीष मेहरोल जो महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के
पनवेल से बिलोंग करते हैं। शुरुआत उन्होंने मुंबई से की थी और अभी रायगढ़ में काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। इस साल काफ़ी फॉर्म में भी है, मगर देखना होगा आशीष मेहरोल के गेंदबाजी का किस तरह से सामना करेंगे पुटू साहा, जो एक बड़े खिलाड़ी है वेस्ट बंगाल के सामने आशीष मेहरोल। और आशीष की इस गेंद को भेज दिया सामने की दिशा में जिधर थे फील्डर, सीधा फील्डर के हाथ में गेंद जाती है और विकेट का पतन। पुटू आउट होकर पैवेलियन की तरफ आते हुए ऐसा लग रहा था साझेदारी बन रही है, बड़े बड़े स्ट्रोक आ रहे हैं और उसी वक्त आशीष मेहरोल विकेट के दोनों तरफ गेंद घुमाने में भी कामयाब रहते हैं। आशीष मेहरोल वही हुआ, थोड़ी सी धीमी गति से की थी, गेंद आगे थी, ओवर पेस थी, उसे सामने की दिशा में लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे मगर पकड़े गए। आउट होकर वापस लौटना होगा। क्या कहेंगे सर, और एक विकेट आता हुआ? ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम फिर से एक बार गेंदबाजों पर हावी होगी, क्योंकि तीसरे ओवर में जिस अंदाज के साथ 20 रन आए थे, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक हमें देखने को मिले थे, मगर फिर से एक बार चौथे ओवर में यहाँ पे गेंदबाज ने वापसी की है। जरूर 35 रन बने 4 विकेट के नुकसान पर। हम है वेस्ट बंगाल की स्टील सिटी दुर्गापुर में, जो दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ है और आज दुर्गापुर में एक बड़ा क्रिकेट का फेस्टिवल हम देख रहे हैं। आज दूसरा दिन इस टूर्नामेंट का, एक काफ़ी बेहतरीन आयोजन भी इस टूर्नामेंट का हम देख रहे हैं। पूरे भारत भर से खिलाड़ी आए हैं इस मैच में, इस टूर्नामेंट में शामिल होने। बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज जो महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, हेड एंड टेल से शुरुआत की थी और जब पहला बिग बैश हुआ था, क्या बल्लेबाजी की थी, क्या बैटिंग की थी इसी बल्लेबाज ने, शुभम मोरे। बल्लेबाजी के लिए शुभम, गेंदबाजी के लिए आशीष मेहरोल। ओहो, एक बेहतरीन रफ्तार भरी जड़ में करना चाहते थे, कामयाब भी रहे। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, कभी थोड़ा सा धीमी गति से करते, कभी रफ्तार से करते। वेरिएशन काफी अच्छा कर लेते आशीष मेहरोल और इसी कारण महाराष्ट्र से लेके वेस्ट बंगाल में आए हैं अपने खेल का प्रदर्शन दिखाने के लिए आशीष मेहरोल। सामने शुभम, बड़ा हिट लगाना चाहते थे, इस बार लेंथ पर आए, वहां से गेंद को घुमाया और भेज दिया विकेट कीपर के हाथों में और एक अच्छी गेंद आती हुई। ऐसा लग रहा था कि मूवमेंट अब बदल रहा है, मगर उसी वक्त आशीष के हाथ में गेंद दी और क्या गेंदबाजी अब तक की है। मगर अभी भी कोशिश करनी होगी, क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है। दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2023। शुभम इस बार थोड़ी धीमी गति से इस गेंद को किया था, पॉइंट की दिशा में गेंद और वाइट बॉल भी करार दिया अंपायर ने। 2 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। टेनिस क्रिकेट हम देख रहे हैं जो महाराष्ट्र में भी काफ़ी लोकप्रिय है, वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी लोकप्रिय है और भारत के हर एक राज्य में लेदर बॉल क्रिकेट काफ़ी मशहूर है उसमें, मगर टेनिस बॉल क्रिकेट भी कुछ कम नहीं है। और आज के डेट में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा खेलने जाने वाला क्रिकेट कौन सा अगर रहेगा, वो है टेनिस क्रिकेट और हम सभी इस टेनिस क्रिकेट के दीवाने हैं। यूट्यूब आने के बाद ये टेनिस क्रिकेट ग्लोबल हुआ, भारत के बाहर गया और भारत के हर एक राज्य में भी बड़े बड़े टूर्नामेंट हमें देखने मिलते हैं टेनिस क्रिकेट के। आज वेस्ट बंगाल फिर एक बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश कामयाब नहीं रही, स्क्वायर लेग की दिशा में ये गेंद गई, टपा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे ही रही थी, बल्ले का किनारा लिया मगर स्क्वायर लेग की दिशा में ये गेंद गई। 1 रन पर ही संतुष्ट होना होगा। स्कोर जाता हुआ 38 पर। 13 गेंदें शेष है और 41 रनों की जरूरत अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। इस गेंद पर अगर बड़ा स्ट्रोक आता है मैच में मजा आ सकता है, देखना होगा, बड़ा हिट आएगा। शुभम इससे पहले भी बड़ी बड़ी टीमों के लिए बड़ा प्रदर्शन जिनका रहा है। सामने आशीष, ओहो बेहतरीन बेहतरीन, भालो भालो खूब भालो, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, दुर्दांत बॉलिंग, बेहतरीन गेंदबाजी देखने मिली। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 38, 4 विकेट के नुकसान पर। सर आपने जैसे कहा कि वेस्ट बंगाल में क्रिकेट की धूम मची है, लेदर क्रिकेट के साथ टेनिस क्रिकेट भी बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसके साथ पूरे देश में फुटबॉल का खेल पसंद करने वाला ये राज्य है,
मगर इस राज्य की बहुत सारी खासियत है, क्योंकि इस राज्य ने, इस भूमि ने हमारे हेलो हेलो भारतवर्ष को हेलो यासीन जी, टाइम भी बता दीजिए क्योंकि टाइम 5 मिनट 43 सेकंड रह गया है, तो एम्पायर भी इस चीज़ को देखते रहे, जरा प्लीज उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। पाँच मिनट शेष है अभी भी, और उस टाइम में आपको आपका पूरा इनिंग खत्म करना है। देखना होगा, 2 ओवर अभी भी शेष है। 12 गेंदे 41 रनों की जरूरत। लक्ष्य बड़ा है मगर इसे हासिल किया जा सकता है। देखना होगा गेंदबाजी के लिए फिर एक बार एजाज मंडरेला जो राजस्थान से बिलोंग करने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गोपाल सिंह रानीगंज से बिलोंग करने वाले वेस्ट बंगाल के एक बड़े खिलाड़ी गोपाल। अच्छी गेंद, फिर एक बार जड़ में करना चाहते थे, कवर्स की दिशा में इस गेंद को खेला, रुकाने में कामयाब रहे, बेहतरीन फील्डिंग का नजारा पेश किया। दरमियान 2 रन हासिल किए दोनों बल्लेबाजों ने, 2 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ। हमारे साथ यासीन मर्चेंट सर जुड़ चुके हैं, रायगढ़ अलीबाग के एक बेहतरीन कमेंटेटर आज वेस्ट बंगाल में। देखना होगा गोपाल, कल से हम देख रहे हैं सर, गेंदबाजों ने काफी अच्छा किया है, 60-70% इस पूरे टूर्नामेंट में। फिर एक बार रफ्तार, काफी रफ्तार से गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई, बेहतरीन। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे गेंदबाज हावी हो रहे हैं, मगर कुछ बल्लेबाजों ने भी इस प्रतियोगिता पर अपनी छाप छोड़ी है। जैसे मैं बंटी पटेल का नाम लेना चाहूँगा, कुछ और बल्लेबाज है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है। जरूर दीपू लेप्टी का भी नाम लेना पड़ेगा। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेला, रुकाने में कामयाब नहीं रहे और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। नौ गेंदे शेष है और 35 रनों की जरूरत अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। आपको बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, क्या कहेंगे सर? जी हाँ, बड़े स्ट्रोक के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है। बहुत ही खूबसूरत वातावरण में ये प्रतियोगिता यहाँ पे खेल रहे हैं, और देखिए इस प्रतियोगिता को 4 चांद लगाने वाले हमारे सारे दर्शक कितनी उत्सुकता से, कितनी ऊर्जित अवस्था में इस टूर्नामेंट का, इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठा रहे हैं। इस बीच DRS थर्ड अंपायर के लिए यहाँ पे याद किया गया है। जी हाँ, इट्स अ फेयर डिलीवरी। 9 गेंदे और 35 रनों की जरूरत। देखना होगा यहां से अगर 2 बड़े हिट इस ओवर में आते, मैच में मजा आएगा। एक लीजेंड खिलाड़ी के रूप में जाने जाने वाले गोपाल सिंह, ओहो, इस बार काफी रफ्तार से गेंद को किया, रन लेने की कोशिश कामयाब रही। अपील किया मगर अपील को अंपायर ने नकारा। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। अभी भी 8 गेंदे शेष है और इस मैच को जीतने के लिए 34 रन बनाने, इस मैच को जीतने के लिए। सर यहाँ पे सिर्फ रफ्तार ही नहीं हमें देखने को मिल रही है, जबकि यहाँ पे उंगलियां भी फेरी जा रही है, गेंद को कट भी किया जा रहा है, कभी गेंद को स्लोअर वन कर किया जा रहा है। यानी अलग अलग तरह की गेंदबाजी होने की वजह से बल्लेबाज यहाँ पे थोड़े से अचंभित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोशिश तो जारी रखनी होगी, क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है। ओहो, और एक बेहतरीन गेंद, इस बार भी बैक ऑफ द लेंथ रखा, टप्पा खाने के बाद गेंद स्विंग होती हुई और विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई। वेस्ट बंगाल के एक लीजेंड खिलाड़ी है टिल्लू शर्मा भी नजर आ रहे हैं, थोड़ी सी चिंतित होंगे। 45 रन बन चुके हैं, बड़े हिट की यहां जरूरत। फिर एक बार एजाज, ओहो, और एक बेहतरीन गेंद देखने मिली।
अंपायर ने नो बॉल करार दी। देखना होगा, एक मौका है बड़ा हिट लगाने का, फ्री हिट का। जी हाँ, यहाँ पे सुनहरा मौका आया है बल्लेबाजों के पास, क्योंकि बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक की तलाश में थे और यहाँ पे रनों की सख्त जरूरत है। बेसब्री से इंतजार यहाँ पे हो रहा है। आम तो आम और गुठलियों की भी दाम। देखना होगा क्या होगा। 7 गेंदें अभी भी शेष है इस मैच को जीतने के लिए। 32 रनों की जरूरत। एजाज इस बार बैकफुट पर गए, गेंद को भेजा थर्ड मैन की दिशा में 4 रनों के लिए और 4 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ। बेहतरीन स्ट्रोक, 4 रन। हेलो हेलो इस गेंद में उछाल थी, उसका फायदा कौशिक, उठाया। भैया एक बार स्टेजे आ, स्टेजे। মাঠে কোনো আর্গুমেন্ট হবে না, টাইম শেষ হয়ে গেছে, যেটা আম্পায়ার বলবে সেটাই হবে। মাঠে কোনো আর্গুমেন্ট চলবে না, মাঠে কোনো আর্গুমেন্ট চলবে না, যেটা আম্পায়ার বলবে সেটাই হবে। মাঠে কোনো আর্গুমেন্ট হবে না, যেটা আম্পায়ার বলবে সেটাই হবে। ফার্স্ট ইনিংসেও এগেনস্ট টিমকে আমরা আগেই বলেছি যে তারা 1 মিনিট আগে খেলা শুরু করে শেষ করেছে, তো মাঠে যেটা আম্পায়ার ডিসিশন সেটাই মানতে হবে। सर एक मिनट। आखिरी ओवर और इस आखिरी ओवर में इस मैच को जीतने के लिए अभी भी 28 रनों की जरूरत। 28 पहली गेंद, फिर एक बार जड़ में गेंद करने की कोशिश रही और इस गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेला। 1 रन जरूर मिलेगा। शुभम एक तरफ और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गोपाल सिंह जो लीजेंड खिलाड़ी है रानीगंज वेस्ट बंगाल के, आज फिर एक बार अपना दमखम दिखाना होगा। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 5 गेंदें शेष है, 27 रनों की जरूरत। दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2023 हम देख रहे हैं। वेस्ट बंगाल की एक बड़ी प्रतियोगिता, जिस प्रतियोगिता में नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, सभी भारत के विविध राज्यों से आज खिलाड़ी आए हैं दुर्गापुर में अपना खेल दिखाने के लिए। अभी भी 5 गेंदें शेष है इस मैच को जीतने के लिए, 27 रनों की जरूरत। बड़े बड़े हिट लगाने होंगे। गोपाल सिंह इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद टपा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई और बिंदी गेंद आती हुई। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 4 गेंदें शेष है और 27 रनों की जरूरत। गेंदबाज की एक्शन देखिए सर, किस तरह से पड़ोसी मुल्क सोहेल तनवीर की यहाँ पे याद ताज़ा करते हुए, मगर गौरव बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। हवा में उछाल कर उस गेंद को खेला है जरूर, क्या उस गेंद तक पहुंचेंगे? जी हाँ, पहुंच गए और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कैच लपकने में कामयाब। और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर डगआउट में। धन्यवाद डीजे मास्टर सागर और डीजे मास्टर अभिजीत। आज हम सबको यहाँ पे मंत्रमुग्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुमधुर संगीत, क्योंकि वेस्ट बंगाल गीत के लिए, संगीत के लिए जाना जाता है। इस धरती ने बहुत सारे ऐसे तारे सितारे दिए हैं फिल्मी जगत में, जैसे फिल्म मेकर सत्यजीत रे,
ऋषिकेश मुखर्जी और अनुराग बासु। और अगर हम संगीत के क्षेत्र में देखेंगे तो R.D. बर्मन, S.D. बर्मन, बप्पी लहरी और गायक शान, श्रेया घोषाल, कुमार शानू और उसी के साथ मन्ना डे और अभिजीत भी इसी धरती से। बड़ा हिट, आखिर में एक बड़ा हिट खेलने की कोशिश जरूर थी मगर वो भी कामयाब नहीं रही और एक विकेट यहां आता हुआ। এর পরবর্তী ম্যাচ ফার্স্ট উইনার, আমাদের ফার্স্ট ম্যাচ যেটা হয়েছিল উইনার ভার্সেস এই ম্যাচের উইনার। सर शेर बंगाल আমরা এই ম্যাচটার শেষ হবে, আমরা পরের ম্যাচটা চালু করব কারণ আজকে আমাদের একসাথে 10টা ম্যাচ আছে, 10টা ম্যাচ করাতে হবে। সুমন্ত দা। शेर बंगाल टीम काफी अच्छी पोजीशन में इस वक्त, अच्छा किया बल्लेबाजों ने, अच्छा किया गेंदबाजों ने और इसी कारण इस मैच को जीतने की दहलीज पर आ चुकी है। सिर्फ 2 गेंदें शेष है पूरे पश्चिम बंगाल में इस प्रतियोगिता के चर्चे। ओहो, और एक बेहतरीन गेंद गौरव द्वारा लेन पर थी, टप्पा खाने के बाद इस बार भी स्विंग होती हुई और कीपर के हाथ में जाती हुई। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, सिर्फ एक गेंद शेष है और 27 रनों की जरूरत। एक बड़ी जीत की तरफ यहां शेर बंगाल सौम्या, और इस मैच को जीत लिया है काफी अंदर से शेर बंगाल सौम्या 11। अच्छी शुरुआत इस प्रतियोगिता का की है और दूसरी तरफ एंजल कोलकाता, उनको और भी मौका है सर यहाँ। আমি পিচ কিউরেটরদের বলছি পিচে হালকা জল দিয়ে তারপর ঝাড় দিও, কারণ আমাদের 10টা ম্যাচ করতে হবে, না না দিলে পুরো মাটি উঠে যাবে। धन्यवाद सर। देखिए उनके नाम में ही शेर बंगाल यानी बंगाल के शेर, बंगाल के शेरों ने यहाँ पे पहली जीत प्रस्तापित की है और इस जीत को जीत में तब्दील करने के लिए जिस खिलाड़ी ने यहाँ पे अहम भूमिका अदा की है उस खिलाड़ी का नाम है सर किसी भी टीम का 12th मैन नहीं आ रहा है, बार बार बहुत परेशानी हो रही है, अपने को भी हो रही है। হ্যালো সুমন্ত দা, মাঠে চলে যাও, হেমন্ত ভাইয়া মাঠে যাচ্ছে, মাঠে গিয়ে টসটা করে নেবে। देखिए आपकी स्क्रीन पर मैच समरी दिखाई जा रही है। शेर बंगाल सौम्या बनाम एंजल कोलकाता, इन दोनों टीमों के बीच जो मैच हुआ वहाँ पे शेर बंगाल सौम्या टीम की जानिब से नदीम ने 15 गेंदों का